मित्रों, हमें इस बात का बहुत आश्वासन है कि कल जो एनसीटीसी की मीटिंग हुई उसमें अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने, चाहे वो भाजपा के हों या गैर यूपीए दलों के हों या इवन कुछ कांग्रेस के भी हों, उन सबों ने संघीय ढांचे के महत्व को बहुत ही गंभीरता से रखा है। हम ऐसा मानते हैं कि संघीय ढांचे और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई विरोधाभास नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई राज्यों के सहयोग, समन्वय और सक्रियता के साथ लड़ी जानी चाहिए, केंद्र के द्वारा राज्यों के अधिकारों के अतिक्रमण के साथ नहीं। The BJP notes with assurance that yesterday in the NCTC meet, most of the chief ministers, including from the BJP, non-UPA political parties, some also of Congress, have highlighted the federal character of our constitutional polity. The BJP firmly believes that there is no contradiction between the fight against terror and the respect for the federal polity of our constitutional arrangement, constitutional democracy. Both can comfortably coexist together. The fight against terror would be fought purposefully only in cooperation with, in coordination and active involvement of the state governments, and not by trampling upon their rights by the central government. This is BJP's very considered view. आतंकवाद के खिलाफ सख्त और दृढ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी चाहती है कि वो कार्रवाई हो और बीजेपी इस स्थिति में सरकार का समर्थन भी करेगी। लेकिन एनसीटीसी के बारे में कुछ गंभीर सवाल हैं। एनसीटीसी कोई कानून से नहीं बन रही है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बन रही है। आपको पता है, बी इट सीबीआई, बी इट पुलिस, be it CRPF, be it BSF, all have been created by law. Even the National Investigative Agency, NIA. All these security agencies have parliamentary accountabilities. NCTC is one body which is being created by an executive order under the overall control of Intelligence Bureau, having complete secrecy and no parliamentary accountability. इसलिए ये विषय बहुत ही गंभीर है। पावर ऑफ सर्च, सीजर, अरेस्ट, इसके बारे में जो कि स्टेट के पावर है, स्टेट पुलिस के पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप कभी भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कल अपनी आरंभिक टिप्पणी में एक बात कही कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त लड़ाई बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी, आपके इस टिप्पणी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप जब आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं तो हमें आपसे 3 सवाल पूछते हैं। Honorable the Prime Minister, when you talk of fight against terror and the need for instrument like NCTC, then the BJP would like to ask 3 questions from you. Number 1, why was POTA repealed? POTA was an instrument badly needed by the security forces in the fight against terror. POTA has been declared to be constitutionally valid by the Supreme Court. Yet, you made a declaration in your election manifesto, if we came to power, we shall repeal POTA. Therefore, the fight against terror was sacrificed at the altar of vote bank politics. वोट बैंक के समीकरण पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता की बलि दे दी गई। दूसरा सवाल, Makoka is fine in Maharashtra,
Organized Crime and Terrorist Activities Act. And exactly the same act, replica of that, comes from Gujarat. You will not approve it? Upon the insistence of Government of India, the Gujarat Vidhan Sabha made amendments twice, made a request to the Government of India, please clear it for presidential approval. You are sitting tight over the matter. The same is the case of Madhya Pradesh. How you can fight terror and organized crime when you have these standards? Question number 3. Mumbai blast of 2008 remains a shame in the fight against terror. All the planners and patrons of that ghastly attack on India remain safe and secure in Pakistan. आज तक पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ. आपने दर्जनों डॉसियर भेजे हैं. हाफिज सईद खुलेआम घूमते हैं और आप पाकिस्तान के साथ रिश्तों के नई ऊंचाइयों का दावा कर रहे हैं. तो यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कैसा संदेश आप देश को देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 6 जनवरी 2004 को उस समय के राष्ट्रपति मुशर्रफ और उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक समझौता हुआ है. और यह समझौता 2 देशों के बीच में है, 2 पार्टियों के बीच में नहीं है, जिसमें पाकिस्तान ने पहली बार माना कि हम पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवाद की कार्रवाई को नहीं होने देंगे. और आज हुई और आप वहां पर आतंकवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करा पाए प्रधानमंत्री. तो आज जब एनसीटीसी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनली वल्नरेबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर जब आप आतंकवाद के बारे में लड़ाई की बात करते हैं तो बीजेपी बहुत विनम्रता के साथ आपसे 3 सवाल पूछना चाहती है. हम फिर कहना चाहते हैं, आतंकवाद के खिलाफ संकल्प युक्त दृढ़ लड़ाई होनी चाहिए और हम सरकार के साथ खड़े होंगे, लेकिन संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करके ये नहीं होना चाहिए. और जिस प्रकार से राज्यों के साथ सौतेला अपमानजनक व्यवहार यूपीए सरकार ने किया है, विशेष रूप से गैर कांग्रेसी गैर यूपीए राज्य सरकारों के साथ, तो उससे सरकार के पूरे इरादे पर संदेह के सवाल उठते हैं. The step-motherly treatment given over the years to the non-UPA and non-Congress state governments by the UPA government bears ample testimony that the government's intention is seriously suspect. इसलिए कल जो विषय उठा है, बीजेपी उसके सारी भावनाओं के साथ है और हम अपेक्षा करेंगे कि सरकार इस दिशा में जो मुख्यमंत्रियों ने अपनी बातें कही है उसके बारे में ईमानदारी से सोचेगी और उस अनुरूप बदलाव करेगी. मित्रों, एक छोटी आपको सूचना देनी थी, फिर जो आपके सवाल होंगे उसके बारे में मैं उत्तर दूंगा कि आगामी 8 मई को बीजेपी का जो वीवर्स एंड आर्टिजन सेल है वो बुनकरों का एक महासम्मेलन कर रहा है दिल्ली में, जिसमें लगभग 8 से 10 हजार बुनकर इस देश के आ रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए देश के टेक्सटाइल प्रोडक्शन में 23% हैंडलूम का हाथ है, जो हाथ से लूम चलाते हैं. अभी इस देश में 2010 की गणना के अनुसार लगभग 2,37,000 हैंडलूम्स हैं. आज उनकी हालत बहुत खराब है. 700 बुनकरों ने आंध्र प्रदेश में आत्महत्या की है. टोटल संख्या 2000 बताई जा रही है. उनको बैंक की क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती. कभी यूपी के चुनाव को लेकर कुछ एडहॉक काम किया जाता है, लेकिन कोई समग्र समन्वित नीति का अभाव है. The handloom weavers of the country are really forced to live a life of penury. Therefore, to articulate their rights and concerns, this Mahasammelan is being held of weavers and handloom artisans on the 8th of May. Shri Gadkari ji will be inaugurating it, and many other top leaders and other experts in the field will participate.